हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स का वीडियो नंबर 2। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ डिटरमिनेंट्स। In this video, we will do some more sums, standard sums of the board examinations. So let us start with the sums. The first sum is prove that using properties, prove that a square plus ab, bc, b square plus bc, AC plus C square, AC C square is equal to 4A square B square C square. Okay, this is the first sum. अब देखो स्टूडेंट, from here we can take A common, from here we can take B common, from here we can take C common. तो LHS, तो let us take A common from C1, B common from C2 and C common from C3. A plus B, B. Now if you take B common, what will you get? C, B, B plus C. And if you take C common, what will you get? C plus A, A plus C. You have to take C common and here we will get C. Now we will apply the formula R2 dash R2 minus R1 minus R3. Okay. Now we will change the second row. How? By this sign convention, by this operation. So A, B, C. So we are changing only R2. So R1 में को ऐसे लिख दो, A plus C. अब देखो R2 minus R1 minus R3. तो what is the result? तो A plus B minus A minus B. What will I get? 0. Here this minus 2C. Here also minus 2C. Okay students? अच्छा, so now, so this is, here I am getting what? 0, because and here I am getting what? B minus B. So this 2 will be subtracted here and here also C, A cancelled, minus 2C. Okay, then write the remaining numbers as it is. B plus C, C. Now what to do? I have 1 0 here. And if I subtract, if I write C2, that is the third column, C3 dash, C3 minus C2. So what will I get? ABC, A0B, C minus 2C, B plus C, and C3 minus C2. Okay, come on, do it. Here you will get A, same thing, 0, and here you get minus B. So what we can see? We can see easily that the second row is containing 2 zeros. The second row is containing 2 zeros. So let us expand by R2. Okay. So if we expand by R2, what we will get? If we expand by R2, what we will get, students? We will get ABC. And what is the element? Minus 2C. And what are the cofactors? A, B, A minus B. So this is what? Minus 2AB C square. And here you will get minus AB minus AB. That is minus 2AB. So minus 2 will become 4. And AB into AB, A square B square. And previously we have C square. So students, this is the way of doing the sum. So this we have proved. Now we will move to the next sum. Now we are going to the next sum. So what is the next sum? I hope you have written it. If you have not written, please pause the video and write it. Okay, and now we are moving to the next sum.
The next sum is determine using properties so that proof a determinant is given. So first one we have to prove that what p alpha square plus 2q alpha plus r equal to 0. This we have to prove. If p, q, r are not in proportion, if p, q, r are not in GP. So this is the question of 2011, and the previous one we have done is the question of 2000, that is the NCERT question, and this is the question of 2011. So determinant is 1 p alpha plus q by p, r by p, q alpha plus r, alpha plus pq by p, alpha plus r by p, and 0 equal to 0. So this is the determinant given. Now what we'll do, we have to prove that this thing, provided p, q, r are not in GP. Acha, so how to do it? So how we will do it? See, here we have q by p, here also q by p, here r by p, here is r by p. So let us do this. So we will apply C3 dash, C3 minus C2. So what will you get? What do you get in the LHS? So only C3 we have to change. So write the C1 as it is. C2 q by p, r by p, q alpha plus r, and C3. Now see, what will be C3? Alpha plus q by p plus q by p, subtract minus q by p. You will get only alpha. Here also only alpha, and here to 0 minus C3 minus C2. So what will I get? Minus q alpha plus r, because 0 minus this. So this is our C3. Now what to do? We want two zeros, so we can see these two elements are same. So what we will do? We will apply R2 dash, R2 minus R1. So okay. So this is given equal to 0. So let's do it. 1 q by p alpha, 0 r by p minus r by p minus q by, so r by p minus q by p minus r by q. So it is will be q here. So q by p minus r by q. Okay. So what will I get here? If I apply R2 minus R1, so what will I get? R by q minus q by p. And again will I get here 0. And here will I get what? P alpha plus q. Only have to change the R2. Q alpha plus R, and minus of what? Q alpha plus R. Okay. Now we can see that we have two zeros in the second row. So when we have two zeros, we can expand it using the second row. How? So how we can expand it? Let's see. Now do one thing. Expand it by the, so this is the, so what will I get? R by q minus q by p. So this is the term. And what is the cofactor of it? So this row, this column gone, this 1, and p alpha plus q, alpha minus q alpha plus r. So this is the equal to 0. So r by q minus q by p. Now you do this, minus q alpha minus r minus p alpha square and minus q alpha equal to 0. So now, so what will I getting? R by q minus q by p. And if I take minus sign, what will I get? P alpha square plus 2q alpha plus r equal to 0. Now
Here there are product of two terms, this first term and second term. Now they have told that PQR are not in GP, means P by Q is not equal to R by Q. P by Q, so it means this term is not GP, because GP means what? P by Q equal to R by Q. Okay, so this is not in GP. So if this is not 0, then this will be 0. So what does this imply? It implies that P alpha square plus 2Q alpha plus R is equal to 0, because this term is non-zero. They are told that this is not in GP. So I hope this is clear to all of you. So we have proved that P alpha square plus 2Q alpha plus R is equal to 0. Now I am moving to the next sum. Now we are moving to the next sum. Okay. The next sum is using determinants prove that. So we have to prove a plus 1, a plus 2, a plus 2, a plus 3, a plus 3, a plus 4. And this is what? A plus 2, a plus 3, a plus 4, 1, 1, 1 is equal to 2. So we have to prove that the value of this is 2. Okay, so value of this is 2. So how to do it? How to do it, students? Let us do one thing. As we have 3 1 in the column, देखो जब तुम देखोगे कि कॉलम में 3 तो कोई भी रो में 3 1 है, तो हम लोग कॉलम कोई भी कॉलम में, ये थर्ड कॉलम में 3 तो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको रो ऑपरेशन करना है, क्योंकि जब हम रो ऑपरेशन करेंगे तो 3 1 से 2 0 मिल जाएगा। और कंसेप्ट क्या है कि 3 1 से जब 2 0 मिल जाएगा तो वहां से हम लोग क्या करेंगे कि उससे हम लोग को फिर ये डिटरमिनेंट जो है वो छोटा बन जाएगा, 2 into 2 ऑर्डर में आ जाएगा। तो हम लोग पहले चूंकि यहाँ पे रो वाइज दिया हुआ है तो हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं, R2 डैश R2 माइनस R1 R3 डैश R3 माइनस R2। ठीक है, हम लोग पहले ये ऑपरेशन करते हैं तो क्या मिलेगा? तो R1 को चेंज नहीं करते, R1 को एज इट इज लिख लो स्टूडेंट्स। अब R2 माइनस R1 मतलब देखो, मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, माने ये पूरा माइनस ये पूरा, तो a प्लस 2 तो कॉमन चल जाएगा ना, तो a प्लस 2 कॉमन चल जाएगा, बचेगा क्या? ये माइनस ये, a प्लस 3 माइनस a माइनस 1। उसी तरीके से जब इसको, और यहां पे क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करो, यहां पे मिलेगा 1, यहां पे मिलेगा 0। कैसे आया 1? a प्लस 3 माइनस a प्लस 2 कितना होगा? 3 माइनस 2 1। यहां पे क्या होगा? जब इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? a प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस 4 माइनस a माइनस 2, यहां भी मिलेगा 1, यहां मिलेगा 0। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अब देखो क्या करना है, तो बचा क्या? यहां पे a कट गया, यहां भी a कट गया, क्या मिला? a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 2 1, यहां पे क्या भेजा? 3 माइनस 1 2, तो 2 इंटू a प्लस 2 1 0, यहां भी क्या मिला? 2 इंटू a प्लस 3 1 0। ओके, अब मेरे पास है क्या? हमको ये देख रहे हैं कि थर्ड कॉलम में 2 0 आ गया, तो थर्ड कॉलम में जब 2 0 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? जब भी कोई एक कॉलम में 2 0 आता है तो ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा? 3 into 3 ऑर्डर से 2 into 2 बन जाएगा। कैसे? तो जिस थर्ड कॉलम में 2 0 आ गया और ये नॉन जीरो नंबर है, तो हमको ये करना क्या है? सिर्फ इस नॉन जीरो नंबर इंटू उसका कोफैक्टर। तो ये नॉन जीरो नंबर क्या है? यहाँ पे नॉन जीरो नंबर 1 है। अब कोफैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? कैसे निकालते हैं? जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा देते हैं, तो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम लोग हटा दिए, तो बचा क्या? 2 a प्लस 2
2a+3 1 1। ओके, अब अगर यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, a+2 a+3 1 1, और यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -2। ओके, तो ये आ जाएगा क्या, a+2 माइनस a+3, तो हमको मिलेगा क्या रिजल्ट, -2। तो दिस इज द सम। तो वी हैव टू प्रूव इट, -2 प्रूव करना था, तो ये -2 आ गया। समझ में आ गया होगा, a+2 माइनस a+3, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं a+2 माइनस a-3, यहां से क्या आएगा, -1 आएगा, और बाहर में 2 है, तो ये आ जाएगा -2। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस सम इज क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वो देखो, इसमें प्रूफ क्या बोला है कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। पहले डिटरमिनेंट क्या दिया हुआ है, b+c c+a a+b, c+a a+b b+c, a+b b+c c+a इक्वल टू 0। यहां बोला कि अगर इफ एबीसी आर रियल नंबर्स एंड डेल इक्वल टू 0, देन सो दैट आइदर, तो क्या प्रूफ करना है, दो कंडीशन है, या तो प्रूफ करो कि आइदर a+b+c इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b इक्वल टू c, ये दो कंडीशन है, ये दो चीज हम लोग को प्रूफ करना है। अब देखो, तो पहले यहां पे डिटरमिनेंट दिया हो कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो प्रूफ करो कि आइदर a+b+c 0 होगा, या फिर a इक्वल टू b इक्वल टू c, ये 0 होगा। ओके, नाउ व्हाट विल डू, तो चलो मान लेते हैं क्या कि a+b+c, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं। हमको a+b+c लाना, कैसे लाएंगे स्टूडेंट, देखो c1 + c2 + c3। now we will perform this experiment, perform this operation। okay, c1 + c2 + c3 क्या मिलेगा, अब बोलो क्या मिलेगा, b + c + c + a + a + b, ऐड करोगे तो क्या आएगा, आएगा 2a + b + c। यहां भी सेम थिंग है, 2a + b + c, 2a + b + c, बचा क्या, c + a + b b + c, a + b b + c c + a इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, अच्छा ना अब क्या करना है हमको कि अब ये हम 2a + b + c कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 2a + b + c कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो हम यहाँ पे 2a + b + c को कॉमन ले ले रहे हैं, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखो 2a + b + c कॉमन ले लिए, तो क्या आया 1 1 1, c + a + b b + c a + b b + c c + a, ओके, इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि हम लोग पहले सब में बात कर चुके हैं कि अगर दो रो में, अगर किसी भी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का एक कॉलम में 3 1 आ रहा है, तो हम लोग रो ऑपरेशन करके क्या कर सकते हैं, 2 0 ला सकते हैं। ओके, तो हम पहला ऑपरेशन क्या करेंगे, r1 डैश r1 माइनस r2 और r2 डैश r2 माइनस r3, तो करो 2a + b + c, r1 डैश r1 माइनस r2, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा c - b, ये क्या होगा a - c, फिर वही r2 - r1, तो ये 1 - 1 0, ये क्या आएगा a - c, और ये यहां पर b - a, 1 b + c c + a आ गया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं
कि एक कॉलम में हमको 2 जीरो मिल चुका है। तो जब एक कॉलम में 2 जीरो मिल चुका है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 into 2 ऑर्डर में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी क्या आया, 1 into 1 का कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर क्या है, ये पार्ट हो गया, लिख दो c माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस सी, b माइनस ए इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे। जैसे हम लोग एक्सपेंशन जानते हैं, 2 into 2 ऑर्डर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमको, देखो स्टूडेंट्स, तो यहां पर मिला क्या हम लोगों को, 2a प्लस बी प्लस सी, ये तो चलता आ रहा है। और यहां पर क्या मिला, c माइनस बी, b माइनस ए, माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर इंप्लाइज इक्वल टू 0। तो 2a प्लस बी प्लस सी, बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस ए बी, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस ए स्क्वायर माइनस, और यहां से मुझे एक टर्म और मिलेगा बी सी, अच्छा ठीक है, माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या आ गया, देखो ए बी और क्या है, ए बी। अच्छा, अगर हम लोग इसको साइन चेंज कर दें तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। क्योंकि ये तो प्लस सी हो जाएगा ना, 2ac माइनस ए सी, 1 ca, और ये माइनस हो गया। अब हम ऐसा क्यों किए, अब देखो, अब इस 2 से इंटू कर दो तो क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब 2ab 2bc 2c है, यही तो। अब देखो, अब करना क्या है हमको, कि ये जो 2a स्क्वायर है और 2b स्क्वायर, तो यहां से अगर हम एक ठो a स्क्वायर ले लें और यहां से एक ठो b स्क्वायर ले लें और ये माइनस 2ab ले लें, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पे 2b था ना, तो एक b यहां चला गया, एक b और यहां से एक c ले लो और bc ले लो, तो ये बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब देखो, अब यहां पे मुझे क्या मिला, दो टर्म, दो फैक्टर्स, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो इंप्लाइज दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, a माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, अब बात क्या है कि ये 3 स्क्वायर्स है। अब ये तीनों सम ऑफ स्क्वायर्स 0 कब हो सकता है, सम ऑफ स्क्वायर्स 0 तभी हो सकता है जब ईच इंडिपेंडेंट नंबर 0 हो, मतलब या तो अलग से ये 0 हो या ये 0 हो, ये 0 हो, क्योंकि स्क्वायर तो नेगेटिव होता नहीं है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, विच इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल टू b माइनस सी इक्वल टू a माइनस सी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर a माइनस बी को 0 मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू बी। अगर b माइनस सी को 0 मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, b इक्वल टू सी, और a माइनस सी को 0 मानते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू सी। तो क्या इंप्लाई किया, a इक्वल टू b इक्वल टू सी। तो क्या प्रूव हो गया कि आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एक तो हमको प्रूव करना था। तो दिस इज आवर नेक्स्ट सम। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। ओके, तो ये हम लोग का सम हो गया।
अब थोड़ा अलग तरह के सम में आते हैं, नेक्स्ट सम में आते हैं हम लोग। तो जरा बोर्ड में रख कर दूं, जो नहीं लिखे हो प्लीज वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम इज आईएससी में ये 2 बार आ चुका है, 2005 में, 2005 और 14, ये 2 बार आ चुका है। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी सी ए सी जो भी हो, बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अच्छा अब हम लोग को यह प्रूफ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस तरह का सम में हम लोग को यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, पर यहाँ पे ए बी बी सी ए सी है। तो पहले हम लोग एक ट्रिक करेंगे। ट्रिक से क्या होगा कि जितने भी टर्म्स है सब स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? तो मल्टीप्लाइंग R1 बाई ए, तो ट्रिक क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग R1 बाई ए R2 बाई बी एंड R3 by C. This trick you have to apply. So let's do it. LHS. So as we are multiplying, we have to divide it here. 1 by ABC. Okay. We are multiplying here, तो divide करना पड़ेगा ना। मान लो कोई नंबर x है, अब उसके बराबर अगर लाओगे तो x इंटू 2 करोगे तो बाई 2 करोगे तब तो x के बराबर आएगा, तो यहां भी वही करना पड़ेगा। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बन जाएगा, ए बी इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। इसको क्या करना है, बी से इंटू करना है, ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी, एंड दिस वन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय सी, तो दिस विल बिकम ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, done. So we are multiplying A, B, C in the R1, R2, R3. Now the trick is take it out common. अब कॉमन ले लो जो मल्टीप्लाई किया हो। क्या मल्टीप्लाई किया हो, ABC, कॉमन ले लो ABC। कैसे? पर कैसे? मल्टीप्लाई किए थे रो में, कॉमन लेंगे कहां से, कॉलम से। तो now we'll take column R1 common from A, B common from R2 and C common from R3. तो what will I get? What will I get? ए बी सी इंटू ए बी सी क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से हम ए कॉमन ले रहे हैं C1 से, तो ए कॉमन ले चला, ये सब कॉमन चला गया, तो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां से बी कॉमन ले लो, तो क्या मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। अब यहां से सी कॉमन ले लो, तो क्या मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अब जो लाना है वो बहुत अब सिंपल लग रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिंपल। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, C1 प्लस C2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आ जाएगा आराम से। तो नाउ विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन R1 डैश R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पे भी वही होगा। अच्छा, इसको हम बाकी लिख दे रहे हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। यहां पर भी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ओके, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तीनों न्यूमरेटर, ये तीनों R1 तो आइडेंटिकल एलिमेंट आ गया ना,
कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है देखा जाए, इफ यू टेक कॉमन तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हम लोग करेंगे C2 डैश C2 माइनस C1 C3 डैश C3 माइनस C1। ओके स्टूडेंट्स, तो C2 डैश C2 माइनस C1 C3 डैश C3 माइनस C1। ओके, तो व्हाट विल यू गेट, क्या मिलेगा इससे, अब देखा जाए क्या मिलता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो C1 को कुछ नहीं करना है, C1 को हम लोग एज इट इज लिख दिए, चेंज किसको करना है, C2 को और C3 को। ओके, नाउ डू द चेंज, C2 माइनस C1, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस 1 0, here also 0 0 1। So we can, here we have three options, we can expand through R1 or C2 or C3, so R1 is best, so expanding through R1, so what will I get if I expand through R1, so 1 plus a square plus b square plus c square, 1 into, what is the cofactor of 1, 1 0 0 1, that is 1, so if this result is 1 because 1 into 1 minus 0, so 1 minus 0 is 1, so this is the only 1 into this is this, so 1 plus a square plus b square plus c square, this is proved। So we have seen that in this way, so these are actually मेन कंसेप्ट क्या है कि तुमको कोशिश करना है कि पहले 3 जो लाना है फैक्टर वो आ जाएगा कॉमन, अगर वो कॉमन चला जाएगा तो किसी भी रो में या कॉलम में 3 तो 1 मिल जाएगा। तो पहला हमको जो लाना है वो टारगेट करेंगे, कैसे आएगा, जब ये कॉमन चला जाएगा तो अपने आप 3 1 आ जाएगा जहां से कॉमन निकला है, चाहे वो रो में से हो सकता है या कॉलम में से हो सकता है। जब 3 1 आ जाएगा तब क्या करोगे, तब तुम वहां पे कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन करो, करके 2 0 लाओ, तो जैसे ही 2 0 तुमको मिल जाएगा तो वो डिटरमिनेंट छोटा हो जाएगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यही है हर सम का टेक्निक। ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सम, now we are going to the next sum and let us come to the next sum, and the next sum is okay, so let's come to the next sum, ISC 2012, ISC 2012। So where the next sum is ISC 2012, prove that a 2a 3a a plus b 3a plus 2b 6a plus 3b a plus b plus c 4a plus 3b plus 2c 10a plus 6b plus 2c equal to a cube। ओके, 2012 ISC 2012 का सम है ये। ओके, नाउ अब देखो, इस तरह का एक सम आता है हर साल ISC में, CBSE और एग्जाम्स में, तो दिस वीडियो विल बी बेनिफिट फॉर बोथ ISC एंड CBSE। अच्छा, नाउ द थिंग इज, okay, now we are going to do is, so what will do the operation, R2 dash R2 minus R1 R2 minus 2R1 and R3 dash R3 minus 3 R2। okay, okay students, अब देखो
तो यहां पर R1 में A है और R2 में उसके जगह पर क्या है, उसके जगह पर 2A है। तो R2 में उसके जगह पर क्या है, 2A है, और R3 में उसके जगह पर क्या है, 3A है। तो मैंने यहां पे 2R1 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें अगर हम 2 इंटू कर देंगे तो 2A माइनस 2A क्या होगा, 0। और यहां पे मैंने 3R1 क्यों लिखा कि 3R1 इसलिए लिखा क्योंकि अगर इसमें 3 इंटू कर देंगे तो 3A माइनस 3A फिर से 0। तो हमको यहाँ पे एक ही स्टेप में, पहले स्टेप में ही 2 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट LHS। तो R2 को चेंज, R1 को चेंज नहीं करना है, A प्लस B प्लस C। ओके, अब R2 माइनस 2R1, 2A माइनस 2A 0। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसमें 2 इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, 2A प्लस 2B, और ये नीचे में क्या है, 3A प्लस 2B। व्हाट विल आई गेट, A, क्योंकि 2B कट गया, 3A माइनस 2A A। अब यहां पर देखो इसमें 2B इंटू करोगे तो क्या मिलेगा, 4A माइनस 2A मतलब 2A, 3B माइनस 2B मतलब B, और ये 2C कट गया, हो गया। अब थर्ड वाले में आते हैं, 3A माइनस 3A 0, 3B 6A माइनस 3A मतलब क्या होगा, 3A, और ये 0 हो गया। 10A माइनस 3A कितना होगा, 7A, 6B माइनस 3B कितना होगा, 3B, और ये क्या होगा, ये 3C होगा, और 3C माइनस 3C 0, हाँ ये 3C। अच्छा ओके, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, सिंपल सम है, तो हमको यहाँ पे 2 0 मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी से एक्सपेंड करेंगे। चलो एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू C1। तो क्या होगा, A इंटू A का कोफैक्टर क्या होगा, A 3A 2A प्लस B और 7A प्लस 3B। अब जरा इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A इंटू A, तो क्या मिलेगा, 7A स्क्वायर प्लस 6AB, सॉरी प्लस ये आ गया 3AB, माइनस 6A स्क्वायर माइनस 3AB। तो ये कट गया, क्या है, A इंटू A स्क्वायर कितना होता है, A क्यूब। तो इस तरीके से ये सम हम लोग इजीली प्रूव कर पाए। बस ट्रिक जानना है, मेथड जानना है, प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं। दिस इज ऑल। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सम। तो व्हाट इज द नेक्स्ट सम, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट सम इज, ओके, ओके, अब हम लोग का जो अगला सम है वो है प्रूव दैट, using determinants prove that 1 plus A 1 1 1 1 plus B 1 1 1 1 plus C is equal to ABC plus BC plus CA plus AB। ओके, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब आते हैं, तो दिस इज द सम। तो अब लेट्स स्टार्ट इट। तो यहां पर पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं ए से, जैसे हम लोग पहले समय मल्टीप्लाई से शुरू किए थे, इसमें डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग R1 बाई ए, डिवाइडिंग R1 बाई ए, R2 बाई बी एंड R3 बाई सी। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखा जाए, तो डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहां पे पहले क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अगर क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई ए, या 1 बाई ए प्लस 1 लिख दो, कोई बात नहीं। R1 को A से करना है, तो यहां पे क्या आएगा, 1 बाई ए, ये भी क्या बन जाएगा, 1 बाई ए। अब R2 को B से करना है, तो 1 बाई बी, 1 बाई बी प्लस 1, 1 बाई बी, ठीक है। अब R3 को C से करना है, तो 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 बाई सी प्लस 1। ओके, क्लियर। अब देखो, अगर हम इन तीनों को ऐड करें, ये तो क्या मिलेगा,
1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहां पर भी देखो 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, और यहां पर भी। तो करना क्या पड़ेगा, किसको चेंज करना पड़ेगा, R1 को। तो R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो क्या आया, ABC, चलो कर लेते हैं। 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहां भी वही लिखना है, इसीलिए मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं। आशा करें आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये तो हो गया ऑपरेशन का। 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ओके, क्लियर। और बाकी जो इतना एलिमेंट्स है, बाकी जो रोज है, यू जस्ट कॉपी एज इट इज, कॉपी इट। ओके, नाउ तो जैसे मैंने कहा था कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, 3/1 अपने आप आ जाएगा। तो चलो कॉमन ले लेते हैं। तो अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो क्या मिलता है, अगर कॉमन ले लेते तो क्या मिलेगा, बोलो। ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, कॉमन ले लिए। 1 1 1 1 बाई बी 1 बाई सी, 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई सी 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1। ओके, अब 3 1 लाने का नेक्स्ट स्टेप ही है 2 0 लाना, है कि नहीं। नाउ वी विल टू ब्रिंग 2 zeros, व्हाट वी विल डू, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। ओके, तो वी आर चेंजिंग द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। ओके, गुड। अच्छा, हियर इफ यू मल्टीप्लाई व्हाट विल यू गेट, ABC, अच्छा लीव इट, विल मल्टीप्लाई लेटर। तो C2 एंड C3 वी हैव टू चेंज। सी क्या मिल रहा है, C1 को एज इट इज लिख दो, हो गया। अब चेंज करो 0 1 0, सिंपल। दो कैसे, 1 माइनस 1 0, 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 बाई बी 1, और ये सेम थिंग 0। यहां भी वही होगा, C1 और C3, तो पहला दो टर्म तो सेम है तो 0 0 हो गया, और दूसरे टर्म में 1 का अंतर है। तो अगर हम इसको, तो क्या देख रहे हैं कि देयर आर 2 zeros इन R1, तो इफ आई एक्सपैंड थ्रू R1 तो क्या मिलेगा, ABC 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और यहां मिलेगा 1 इंटू 1 0 0 1, वो क्या होता है, 1 होता है। अब इसको इंटू कर दो, ABC इंटू 1, ABC बाई ए, BC ABC बाई बी, AC AB इंटू 1, बिकॉज इसका वैल्यू तो 1 आ गया ना, 1 इंटू 1 माइनस 0, तो ये हमको क्या मिला, दिस इज द डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट हम लोग को मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा कर रहे हैं इस वीडियो में दिखाए गए सम्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। प्लीज प्रैक्टिस मोर सम्स फ्रॉम एनी बुक, वट एवर बुक you are following, and so that you can do better. Okay, till then have a nice day. We'll meet